Okay, good afternoon to all of you. And I will start our today's session. So in today's lecture also I will continue that last topic and in tomorrow's lecture I will take revision of unit 1 and unit 2. Okay, so this we already discussed in our last lecture how to find the probability of A union B. Okay, so this formula actually will get it from Venn diagram. Okay, so just by drawing this diagram you will understand why I consider probability of A union B as probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B, because that intersection part is repeated in A also and in B also. Okay, दो बार intersection part आपका repeat हो रहा है, so we have to subtract at least one intersection part, so minus the one times the probability of A intersection B. And if these two events are mutually exclusive, okay, mutually exclusive means what? There is no common points between these two events. Then in that case, the probability of A union B is actually the probability of A plus probability of B. Okay, so in today's lecture itself, you have to consider an example on this corollary. Okay, or you have to consider the events which are mutually exclusive, and then. I just define this probability of A intersection B, which is probability of A multiplied by probability of B by A. But this B by A is actually probability of B by A is actually probability of B itself. Okay, but provided event A is already occurred. So after completion of event A, whatever the probability of B you will get, that probability of B is denoted by B by A. Okay, so probability of B after completion of event A, that is the meaning of probability of B. या simply वो और simply अगर आप ठीक है examples वैसे भी आज के lecture में होने वाले, so from that also you can understand the meaning of P of B by A. Also I think I consider this example, है ना, and from this you will understand the meaning of B by A. So first of all we have to complete event A, है ना, in which we have to draw one blue ball, and after that we go for the another draw, है ना. Again we have to draw one and then we have to draw the two blue marble. So to draw the second marble, okay, after completion of event A, that is denoted by P of B by A, and whose probability is 1 by 4. Okay, so just go through this example, you will understand the meaning of probability of B by A. And this is the Bayes theorem. Okay, not that much important as far as our syllabus is concerned, but you just go through this PDF. It is all parts I already covered in the previous slide, so no need any specific explanation for this PPT. Okay, so now we'll directly start some examples. Okay, तो ये सारे प्लेन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है. ओके, इसमें कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में मेथड फिक्स नहीं है. ठीक है, तो जिनको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डिफिकल्ट जा रहा है, एटलीस्ट स्टिक विद दिस एग्जांपल. जितने अभी मैं लेक्चर्स में ले रहा हूँ, अगर उतने एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ रहे हैं, ओके, दैट इज इनफ एज फार एज दिस प्रोबेबिलिटी टॉपिक इज कंसर्न. ओके, क्योंकि इसके बाहर कुछ ज़्यादा आपको नहीं आने वाला. जिनको डिफिकल्ट जा रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के लिए कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होता कि चलो अभी मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया. इट डजंट मीन दैट यू कैन सॉल्व ऑल द रिमेनिंग एग्जांपल्स, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर अप्रोच और स्पेसिफिक अप्रोच. हर एक एग्जांपल में आइडियाज अलग अलग रहेंगे, मेथड्स अलग अलग होंगे, है ना. आपको उस हिसाब से सोच के आगे कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज इन एवरी एग्जांपल लॉजिक इज डिफरेंट, आइडिया इज डिफरेंट, एंड यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. ओके, सो we'll start the first example. So question 1 is like this: the probability of A hits the target is 1 by 4, correct? And so here event is already defined, okay, where A is what, A hit the target, B is what, player B hit the target, okay, and B hits the target, and whose probability is 2 by 5. Both shoot at the target. Find the probability that at least one of them hits the target. Okay, so in solution क्या given है आपको? Probability of A is given, so probability of A hits the target is 1 by 4. Okay, probability of B hits the target is 2 by 5. और आपका क्वेश्चन क्या है? Here you have to find the probability. Okay, find the probability that at least one of them will hit the target. Means what? Okay, at least one of them. At least का मीनिंग क्या होता है? अगर A ने भी if A hit the target, that also you have to consider. If only B hit the target, that also you have to consider. If both will hit the target, that also you have to consider. That is nothing but A union B.
सी ये सारा वर्डिंग का खेल होता है कि आपको वर्डिंग को कैसे मैथमेटिकली लेके आना है। ओके, एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट वन, है ना? एटलीस्ट मतलब ए और बी में से किसी एक को तो एटलीस्ट हिट करना है। उसका मीनिंग क्या होता है? ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में अगर if in case of A union B, if X belongs to A only, then also it belongs to this set. If X belongs to B only, then also it belongs to this set. And if X belongs to A intersection B, then also it belongs to this set. So A union B actually cover this at least part, है ना? And to find what is the formula for A union B? तो A union B का फॉर्मूला क्या था? अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस स्लाइड में देखा है। दिस A union B, probability of A union B is actually probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ओके, तो अगर इसमें एक वैल्यू आपको समझ में आ रही है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B, so first of all we need to calculate the probability of A intersection B. Okay, so to find the probability of A intersection B means this. Okay, तो A intersection B में आपको पहले ये देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इवेंट A एंड इवेंट B. अगर वो इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली दोनों का प्रोडक्ट होगा। अगर वो डिपेंडेंट है तो आपको जो लार्जर प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे कंसिडर करके, है ना, देन यू हैव टू कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A. ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना? ये रिजल्ट आपको कंसिडर करना है। ओके, तो अभी पहले ये देखो कि इन दोनों इवेंट में कुछ रिलेशन है क्या, वेदर दे आर डिपेंडेंट और वेदर दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो सो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो, ए क्या है? ए इज व्हाट? अ प्लेयर ए, ओके, हिट्स द टारगेट. सो हियर दिस स्टेटमेंट इज देयर इन. So here we assume that A and B are independent events. That is the probability that A or B hits the target is not influenced by what the other does. है ना? A player अलग है, okay, and whose probability of hitting the target is 1/4. Okay, B player is separate and whose probability of hitting the target which is 2/5. So there is no relation between player A and player B. है ना? प्लेयर ए और प्लेयर बी में कोई रिलेशन है, मतलब ए अगर हिट करता है तो ए हिट करने के बाद बी पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. अगर बी टारगेट को हिट करता है तो ए प्लेयर पे कोई इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. देयरफॉर दिस टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. This implies the probability of A intersection B is probability of A multiplied by probability of B. Okay, that is the 1/4 multiplied by 2/5 and that value is 1/10. Now put all these values. So probability of A is 1/4. Probability of I think this part is not visible. So probability of A is 1/4. Probability of B is 2/5. Okay, and at the end minus probability of A intersection B, that value is 1/10. So just perform this calculation. That is your final answer, because A union B actually gives you the probability of at least one will hit the target. Okay, so this is your example 1. We'll take one more example. So here we have to cover 5-6 examples so that you can at least you will get some idea about this probability. Okay, so next is what? In a certain college 25% of students failed in mathematics. So we have given the probability of students, okay, failed in mathematics. परसेंटेज में given है तो आप इजीली उसको probability में कैलकुलेट कर सकते हो. That is 25/100. So this is the probability of students, okay, failed in mathematics. Next is what? 50% of students failed in chemistry. So probability of students failed in chemistry, which is P of C, is 15%. That is 15/100. And 10% students actually failed in both mathematics and chemistry. So the probability of students failed in both, मतलब both अगर वर्ड आ रहा है तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन कंसिडर करना होगा. ओके, यूनियन आप लेते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा? एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, आइदर इन केमिस्ट्री और आइदर इन मैथमेटिक्स और आइदर इन बोथ. सो इंटरसेक्शन में बोथ का पार्ट कवर हो जाएगा. सो 10% फेल्ड बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट इज मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 10/100. ठीक है, सो दिस पार्ट इज गिवन. सो लेट्स राइट डाउन दिस पार्ट. सो हियर आई डिफाइन M इज द इवेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स. जो क्वेश्चन में गिवन है ना वही आपको कॉपी पेस्ट करना है. Student failed in mathematics. So C is the event which is student failed in chemistry. ये वर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्डिंग के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा. लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस defined events only you can understand in which example you have to consider the complement of the given probability. अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, but later on you will understand how in which example we need to consider the complement part.
ठीक है। तो क्वेश्चन में जो गिवन था उसको आपने बस एज अ इवेंट में डिफाइन किया। सो हियर एम इज द इवेंट वेयर स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, सी इज द इवेंट वेयर स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री। जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कंसिडर करो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम is 25/100, okay, failed in mathematics, failed in chemistry, which is 15%, that is 0.15, 0.25, and probability of students failed in both mathematics and chemistry is P of M intersection C, and that value is 0.10. okay, तो जो भी given part था वो आपने यहाँ पे consider किया। Now come to the first question. If the student failed in mathematics, okay, what is the probability that he or she failed in chemistry? Okay, so in first question, okay, first of all you have to consider that a student failed in mathematics, and after that you have to calculate what is the probability that he or she failed in chemistry. Okay, so at the end here we have to find the probability of students failed in chemistry. That is your last question. Find the probability that he or she failed in chemistry. So, okay, so at then we have to calculate the probability of that student failed in chemistry. But provided, okay, but before this, okay, first of all you have to consider those students who are already failed in mathematics. But provided that students failed in mathematics, that is C by M. So here we have to consider probability of C by M, means probability of C when event M is already occurred. Okay, so what is the definition of probability of C by M from that previous slide? So this probability of C by M is defined as probability of M intersection C upon probability of M. That larger probability you have to consider outside. Okay, because here you can see probability of M is larger and probability of C is lesser. So how you define the probability of C by M? Okay, this is equal to probability of M, because M is larger, multiply by probability of M intersection C, like this. So from this result, let me erase this. So from this result, the probability of C by M is equal to probability of M intersection C upon probability of M, where we already given the probability of M intersection C, which is 0.10, and the probability of M failed in mathematics, which is 0.25. So this ratio is 2 by 5. So this is your final answer. Probability of student failed in chemistry. Okay, if he or she already failed in mathematics. Okay, now come to second question. So second question is like this: what is the probability that student failed in mathematics or chemistry? Correct. So or यहाँ पे word आ रहा है, it means you have to consider probability of student failed in mathematics और की जगह पे आपको पता यूनियन आता है. Okay, chemistry. So probability of student failed in mathematics or chemistry. So that I will show you in next slide. So probability of M union C, okay, is equal to probability of M plus probability of C minus probability of M intersection C, and that gives you 0.25 plus 0.15 minus 0.10, that is 0.30. Okay, and now we'll come to the last question. Okay, so last question क्या था? So in last case you have to find the probability of student failed neither in mathematics nor in chemistry. अभी आप देखो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट का आपको मीनिंग समझ में आएगा. इफ आई शो दैट क्वेश्चन हियर, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट फेल्ड नाइदर इन मैथमेटिक्स नॉर इन केमिस्ट्री. बट आपको गिवन क्या है? वी हैव गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट व्हिच इज फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, एग्जैक्टली इसका जो अपोजिट पार्ट है वो आपको गिवन है. तो ये जो क्वेश्चन है आपको कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना होगा. करेक्ट. सो ओके, सो हाउ यू सॉल्व दैट एग्जांपल? आपको कैलकुलेट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ओके, फेल्ड नाइदर इन मैथमेटिक्स नॉर इन chemistry. Means what? If I consider a students who are failed in mathematics or chemistry, तो यहाँ पे इस सेट में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फेल हो रहा है वो भी आ रहे हैं, या जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल हो रहे हैं वो भी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना, इस सेट में. So here in this set we have the students who are failed in either mathematics or either in chemistry or either in both. दोनों में भी अगर फेल होता है तो वो भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पार्ट? अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, है ना, सो इफ आई पर्टिकुलरली कंसिडर दिस एग्जांपल हियर. सो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फेल्ड इन मैथमेटिक्स. ठीक है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फेल्ड इन केमिस्ट्री. ठीक है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फेल्ड इन बोथ. अगर मैं इस
पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आउटसाइड का पार्ट। और यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स है, these are the students who are failed in neither mathematics nor chemistry. So here these are the students who are failed in neither mathematics nor in chemistry. ठीक है, आपको ये अच्छे से, let me erase that part. So these are the students who are failed in neither mathematics nor chemistry. तो आपको यहाँ पे अच्छे से डायग्राम से वो समझ में आ जाएगा. Therefore here we have to consider the complement of probability of M union C. Okay, complement of probability of M union C, and this is equal to 1 minus probability of M union C. This is the definition of probability of A complement. So the probability of A complement is actually 1 minus probability of A. ठीक है, this is the definition of probability of A complement. So 1 minus probability of M union C, and that is equal to 0.17. Okay. So I will take some pause here so that I can understand if you have any doubts on this part. Is there any doubt on this part? या कोई क्वेश्चन एक और बार रिपीट करना है? Just let me know. So this part is not that much trivial. Okay. In every example, idea is different, method is different. तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं. Whether this A part is clear to everyone, है ना? How I consider the probability of C by M. Okay. इसमें बस मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है. यहाँ पे we have to find the probability of student that failed in chemistry. We have to find the probability of student that failed in chemistry, but provided it's already failed in mathematics. ठीक है. तो इसका जो फॉर्मूला था, I will show you that part also. तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ से कॉपी किया. हाँ. आप यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी एंड, हाँ, इन दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूले. अगर इफ ए सेट इज लार्जर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो लार्जर सेट है वो बाहर आता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए. अगर आपका बी सेट लार्जर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वी ऑलरेडी नो दैट, let me take this side. So here we already know that our M set is larger, therefore probability of M intersection C is probability of M multiplied by probability of C when event M is already occurred, and this implies the probability of M C by M is equal to 2 by 5. तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने P of M ही क्यों कंसिडर किया है. ठीक है, तो ऑलरेडी C by M ही आपने कंसिडर किया था, तो आपके पास यही एक चॉइस थी P of M, तो उससे भी वो चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी. Okay. Okay, so I don't think so there are okay, so there are no doubts. Sure, we'll go to next question. Okay, so now let me define the one more result which are required while solving the problems in probability, which is NCR. Okay, NCR basically आपको अभी तक mathematically पता होगा. This NCR is defined as n factorial upon r factorial minus n minus r factorial. Okay, so ये mathematically I think सबको ही पता है. This is the definition of NCR. But in this probability topic, okay, what is the importance of this NCR? This NCR is actually gives you this selection of R objects, count of, okay, this actually gives you count of selection of R objects from N objects. Okay, for example, if I have this okay, 4 ball and I have to select 2 balls randomly. So I have this 4 balls already and I have to select 2 balls randomly. So how many choices are there? I can select this 2, I can select this 2, I can select this 2, है ना? I can select first with third, I can select first with last, I can select second with last. Okay, and I can select, okay, so these are the choices to select the 2 balls from this 4 balls. So how you calculate this? तो मैनुअली ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि कैसे सिलेक्ट करना है. आप तो यहाँ पे ऐसे 1 by 1 वर्कआउट करके आपको वो सिलेक्शन करना है. बट ये मतलब जिस केस में, चलो जिस केस में n आपका स्मॉल है उस केस में आप ये मैनुअली भी कर सकते हो. बट अगर मैं 18 बॉल्स लेता हूँ, इफ आई टेक 18 बॉल्स एंड फ्रॉम 18 बॉल्स आई हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स रैंडमली. ओके, सो फिर वो पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, मैन्युअली करना कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा. सो टू डू दैट, ओके, वी जनरली कंसिडर NCR. सो एक्चुअली दिस NCR गिव्स यू selection of say 2 balls. Sorry, this NCR gives you selection of
2 balls from 18 balls, like this. Okay, so 18 factorial upon 2 factorial minus 18 minus 2 factorial, whatever value is there, that is the number of ways, the number of or the count of selection of R objects from N objects. So I hope this part is clear to everyone. Okay, इसमें n का सिंपली मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में से आपको R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ना, विदाउट रिपीटेशन ना, तो यहाँ पे मतलब इफ टू आर सेम, तो उसको मतलब अगर यहाँ पे चलो 18 बॉल्स में से अगर दो बॉल आपके सेम ही आ रहे हैं, रेड ही आ रहे हैं, ओके, तो वो आपको स्किप करना है. सो हियर वी हैव टू कंसीडर थिंग्स विदाउट रिपीटेशन, है ना. तो यहाँ पे रिपीटेशन में जो चीज़ें आ रही है वो आपको स्किप करना है, आपको बस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में ही फोकस करना है. सो फ्रॉम दोज आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू सिलेक्ट, सॉरी, फ्रॉम दोज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली इन द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, so a question is like this: a class has 12 boys and 4 girls. Suppose that 3 students are selected at random. ठीक है, तो यही पे आपको पार्ट समझ में आएगा. चलो, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? ओके, 12 plus 4, so total there are 16. Correct? So total there are 16 students in the class, and from the 16 students I have to select 3 students randomly. So what are the possibilities? 16C3. आप ये कैलकुलेट करो, दैट इज 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 16 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ वेज. ओके, दैट एक्चुअली गिव्स यू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ओके 3 students from class of 16. From class of 16 students. तो इस एग्जांपल से आपको एटलीस्ट NCR का मीनिंग समझ में आ रहा है. तो NCR एक्चुअली गिव्स यू सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द N ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल. हाँ, तो ये यहाँ तक रेडी किया था. फ्रॉम द क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर बॉयज, है ना. तो यहाँ पे पहले आपको इवेंट डिफाइन करना है. इवेंट क्या होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो उन्होंने डिफाइन किया. चलो, तो इवेंट आपको क्या लेना होगा? सो लेट बी व्हाट? ओके, सो बी इज डिनोट फॉर बॉयज इन द क्लास. ये आपको आपके लैंग्वेज में डिफाइन करना है, बॉयज इन द क्लास. तो जैसे आप डिफाइन करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया फिर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दे आर ऑल बॉयज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना. तो उसके लिए पहले आपको ये देखना है, ओके, बट कितने बॉयज सिलेक्ट करने? वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन हाउ मेनी वेज. तो यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है? फर्स्ट इन डिनोमिनेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास ऑफ 16 स्टूडेंट्स. तो उसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना होगा 16C3. पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप 3 स्टूडेंट्स कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हो. सो टोटल देयर आर 560 वेज, है ना. सो फ्रॉम दिस 560 वेज आई कैन सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम दी 16 स्टूडेंट्स. ओके, फिर उसके बाद, है ना, तो नीचे आने वाला है 560. फिर उसके बाद वो जो 560 काउंट आ रहा है, उस 560 काउंट में कितने बॉयज आ रहे हैं? ओके, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो नेक्स्ट इज व्हाट? हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 3 बॉयज. ओके, आपको बस कैलकुलेट क्या करना है कि इनमें कितने बॉयज है ना. क्योंकि देर आर 560 वेज, दिस आर दी वेज. तो इसमें हर एक मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, हर एक काउंट में एक्चुअली देर आर 3 स्टूडेंट्स. ओके, आई होप यू कैन इमेजिन दिस पार्ट. ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि देर आर 3 वेज टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस, इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट वे होगा उसमें भी 3 स्टूडेंट्स आएंगे, सेकंड वे होगा उसमें भी 3 स्टूडेंट्स आएंगे, जो थर्ड वे होगा उसमें भी 3 स्टूडेंट्स आएंगे. अभी मुझे ये जो 560 वेज है, इनमें से कितने वेज में या कितने केस में आपको 3 बॉयज मिल रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है. या सिंपली आई कैन से आई हैव टू जस्ट फाइंड इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट 3 बॉयज. ओके, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट 3 बॉयज, बट फ्रॉम विच? ओके, फ्रॉम विच? फ्रॉम 12 बॉयज, क्योंकि देर आर ओनली 12 बॉयज, दैट वी ऑलरेडी नो. सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम दिस 12 बॉयज, दैट काउंट इज 220. तो बेसिकली देर आर 220 वेज, ओके, in which all 3 are boys. So basically there are 220 ways in which all 3 are
boys. So that count upon total count gives you probability. Okay, it's very similar to परसेंटेज, है ना. जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, अगर आपको आउट ऑफ 100 अगर आपको 70% मिल रहे हैं, है ना, सो दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी. तो यही मैंने किया है. सो टोटल कितने वेज, टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स. So 560 ways are there. Now tell me in how many ways I can select 3 boys. That is 12C3. That is 220. Therefore, this ratio gives you probability of all three selected students are boys. Okay. I will slowly move to the. So here I have shown the calculation of 16C3. In this way, actually we calculate this 560. Similarly, we have 220 calculate for, and then just take this ratio. Okay. This also you can calculate on scientific calculator directly. साइंटिफिक कैलकुलेटर में एनसीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला है. यू कैन चेक दैट आल्सो. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, सो आई विल कंप्लीट दिस एग्जांपल फर्स्ट. ओके, हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. एन अर्न contain 6 white and 8 red balls. ठीक है. Second urn contain 9 white and 10 red balls. Okay. Again I tell you, in every example method is different, idea is different, logic is different. Okay. कोई भी similarity नहीं होगी. So in first urn we have 6 white and 8 red balls. In second urn we have 9 white and 10 red balls. One ball is drawn at random from the first urn and put into a second urn विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, है ना. तो ये पहले आपको परफॉर्म करना है. आपको मैं दिखाता हूँ एनिमेशन के थ्रू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. ओके, तो पहले आपको करना है क्या, जस्ट ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम द फर्स्ट अर्न एंड देन पुट इनटू द सेकंड अर्न विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे चॉइसेस क्या होंगे. जब भी आप फर्स्ट अर्न से बॉल लेते हो ना, सो दैट बॉल मे बी रेड बॉल and that ball may be white ball, because here we haven't noticed that color, na? So it may be red, it may be white. So those two cases we need to consider. Okay, then next statement is what, a ball is then drawn at random from this. Okay, उसके बाद करना क्या, again draw one more ball from the second urn. Okay, और आपको उस केस में you have to find a probability that it is red. So basically just find a probability when you draw a ball from second urn that ball is red. ओके, मैं आपको एनिमेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ. सो देयर इज वन अर्न, ओके, इन विच देयर आर 6 वाइट एंड 8 रेड बॉल्स, है ना. पहले तो क्योंकि क्वेश्चन समझ में आता तो ये सॉल्यूशन पे वर्कआउट कर सकते हो. एंड देयर इज वन मोर अर्न इन विच 9 वाइट एंड 10 रेड बॉल्स आर देयर. ओके, यू हैव टू ड्रॉ वन बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस फर्स्ट अर्न, है ना, विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर. इट मीन्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इट मे बी रेड एंड इट मे बी वाइट. फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, देन जस्ट पुट दिस बॉल इन सेकंड अर्न. ओके, जो आपने फर्स्ट अर्न से बॉल ड्रॉ किया था उसको सेकंड अर्न में डाल दो. ठीक है ना. तो इसमें कितना काउंट आने वाला है, ऑटोमेटिकली 20. टोटल 19 बॉल्स थे, आपने एक और डाला, सो दिस काउंट बिकम 20 नाउ. फिर क्या करना है, अगेन ड्रॉ वन मोर बॉल फ्रॉम दिस. ओके, बट ये बॉल आपको क्या चाहिए, दिस बॉल मस्ट बी रेड. ठीक है. So I want that ball to be red. So basically we have to find a probability when you draw a ball from second urn which is red. ठीक है. तो इसमें अभी एक अप्रोच क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, okay, I will show here. So from first urn I will draw a red ball, then I put in second urn. So from first urn I will draw the red ball, then I put in second urn, and from the second urn आपको second urn से तो आपको red ball ही ड्रॉ करना है. ठीक है. सो रेड टू रेड, फर्स्ट से भी रेड किया, सेकंड से भी रेड ड्रॉ किया. सेकंड वे क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट आई विल ड्रॉ द व्हाइट बॉल, देन पुट इन सेकंड अर्न, देन फ्रॉम द सेकंड आई विल ड्रॉ द रेड बॉल, क्योंकि आपको एट द एंड रेड बॉल ही ड्रॉ करना है सेकंड अर्न से. तो यही 2 पॉसिबिलिटीज है. ओके, सो आई विल राइट दिस पॉसिबिलिटीज इन थ्योरेटिकल वे. सो इन सोल्यूशन, ओके, फर्स्ट केस इज व्हाट, द व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, करेक्ट, इनटू द सेकंड अर्न. तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, है ना. सो टोटल देयर आर 10 वाइट बॉल एंड देन रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, एंड फिर उसके बाद रेड बॉल आपको ड्रॉ करना है. चलो, ये हो गया आपकी फर्स्ट केस. सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है, मैं W1 R1 को बोलता हूँ तो आपको समझ में आ जाए. सेकंड केस क्या है, नाउ रेड बॉल इज ड्रॉन
फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, देन पुट इन सेकंड अर्न, तो यहाँ पे 10 + 1 हो जाएगा 11 हो जाएगा ये, और 11 ये 9 ही रहेगा फिर, एंड देन अगेन ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड अर्न. सो दिस इज द आइडिया. ओके, एंड नाउ विल कम टू नेक्स्ट पार्ट. तो ये प्रीवियस जो डायग्राम थे वो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे कंसिडर किए. ओके, सो विल डिफाइन सम इवेंट. ओके, वन बाय वन डिफाइन करता हूँ मैं. तो ये आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विद इन 1 लाइन आंसर लिखना पॉसिबल हो जाता है, बट आपको ये 3 एग्जाम्पल है, मतलब आपको प्रॉपर स्टेप से उसको एक्सप्लेन करना है. सो हियर आई डिफाइन ए इवेंट एज ट्रांसफरिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टर्न. तो जो व्हाइट बॉल यहाँ से आप ले रहे हो ना, उस इवेंट को आप क्या बोलो, ए इवेंट बोलो. नाउ आई कंसिडर इवेंट बी इन विच आई एम ट्रांसफरिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टर्न. जब आप रेड लेते हो उस इवेंट को आप बी बोलो. और सी इवेंट तो फिक्स है. सी इवेंट क्या है? सी इवेंट क्या आपको सेकंड अर्न से क्या कैलकुलेट करना है, क्या ड्रॉ करना है, रेड बॉल. सो जब आप रेड बॉल यहाँ से लेते हो दैट इवेंट इज सी. ओके, चलो इवेंट सारे आपने डिफाइन किए, बिकॉज फ्रॉम दिस इवेंट ओनली यू कैन राइट द प्रोबेबिलिटी फॉर द गिवन अर्न. एंड नाउ फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन. सो एक ही कैलकुलेट करने ना, इट मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट अर्न. ओके, तो कैसे कैलकुलेट करने, टोटल कितने बॉल्स है फर्स्ट अर्न में, टोटल देयर आर 8 + 6, सो टोटल देयर आर 14 बॉल्स इन दैट फर्स्ट अर्न. तो उनमें व्हाइट कितने हैं, टोटल देयर आर 6 व्हाइट बॉल. सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इन फर्स्ट अर्न इज 6/14. 6 व्हाइट है, टोटल 14 बॉल्स है, सो प्रोबेबिलिटी 6/14. तो ये हो गया ए का. नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, क्वेश्चन अगर ये डिफाइन किया तो आपको यह समझ में आ रहा है कि करना क्या है, आपको कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सी की. एट द एंड आपको सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बट उससे पहले आपको मतलब बट टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिनिश आइदर इवेंट ए और आइदर इवेंट बी. तो आप देखो ये कैसे लिंक हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट है. पहले इवेंट ए को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सी पे आपको जाना है. सिमिलरली अगर आप पहले बी इवेंट को कंप्लीट करते हो देन ओनली यू कैन गो फॉर द इवेंट सी. ओके, and what is event B? Event B is what? Drawing a red ball from the first urn. तो फर्स्ट अर्न में टोटल कितने बॉल्स है, 14, उसमें रेड कितने, 8, सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 4/7. ओके, अभी आप देखो तो ये दोनों अलग अलग वेज है. नाउ देयर आर 2 डिफरेंट वेज. ओके, 2 डिफरेंट वेज आ रहे हैं मतलब, और उन दोनों में इन बोथ दोज वे ओके देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स, है ना. यहाँ से पहले व्हाइट बॉल का ले लो, व्हाइट बॉल को ड्रॉ करो, सेकंड अर्न में पुट करो, फिर वहाँ से रेड बॉल को ड्रॉ करो. ये जो फर्स्ट वे था. सेकंड क्या है, फर्स्ट अर्न से रेड बॉल को ड्रॉ करो, सेकंड अर्न में पुट करके फिर उसके बाद रेड बॉल को ड्रॉ करो. दिस इज योर सेकंड वे. इन दोनों वेज में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, सो देयरफॉर दिस 2 वेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट आई ड्रॉ दी व्हाइट बॉल, उस इवेंट को आपने ये बोला है. ओके, एंड देन आफ्टर आई हैव टू ड्रॉ दी रेड बॉल, दैट इज ए इम्प्लाइज सी. व्हाइट बॉल ड्रॉ करने के बाद रेड बॉल ड्रॉ करो. ओके, सो दिस इवेंट एंड रेड बॉल ड्रॉ करने के बाद रेड बॉल ड्रॉ करो, दैट इज योर सेकंड इवेंट. इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, बिकॉज these are 2 डिफरेंट अप्रोचेस. देयरफॉर एट द एंड योर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, एडिशन ऑफ दिस 2 इवेंट. ठीक है, सो ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए. ओके, सो व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी. So probability of drawing, so C क्या है basically, probability of drawing red ball. Okay, so probability of drawing red ball when you already put a white ball A ना, तो when you already put white ball in that urn, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ए इवेंट परफॉर्म करना होगा. तो ए इवेंट क्या है, ए इवेंट क्या आपका कि यहाँ फर्स्ट अर्न से व्हाइट बॉल कलेक्ट करो, इसमें डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 1 व्हाइट बॉल आ जाएंगे. ओके, अभी हमें क्या कैलकुलेट करनी है. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन माय इवेंट ए इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो वो क्या आने वाली है. सो टोटल कितने बॉल्स है अभी सेकंड अर्न में, 10 + 9 + 1, सो टोटल देयर आर 20 बॉल इन दैट अर्न. आपको क्या चाहिए, सी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, बट उसमें रेड कितने, 10 रेड है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर इज 10/20. टोटल रेड कितने, 10, टोटल कितने बॉल्स है, 20, सो 10/20. ओके, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन इवेंट बी इज ऑकर्ड. तो जब आप इवेंट बी परफॉर्म करते हो, पहले ये इरेज करता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा. तो इवेंट बी के लिए क्या करना होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी ऑकर। तो पहले बी इवेंट कंप्लीट करो। बी इवेंट क्या है, यहाँ से एक रेड बॉल लेना है, यहाँ से एक रेड बॉल लेके यहाँ पे ऐड करना है, तो रेड बॉल में +1 आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैलकुलेट करनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, वो क्या आ जाएगी, टोटल कितने बॉल्स है सेकंड रन में, 20 बॉल्स है। अभी उसमें से आपको सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, तो उसमें रेड बॉल कितने, तो उनमें रेड बॉल कितने, 10 + 1 दैट इज 11। So that probability is 11/20. So I hope you will understand how I calculate this probability of C by A and the probability of C by B. Okay. And now the probability of, अभी आपको करना क्या है, आपको A event, मतलब A event क्या है, drawing of first turn है ना, सॉरी drawing of first ball from the first turn। C event क्या है, ड्रॉइंग द वन मोर बॉल। ओके सॉरी, ए इवेंट क्या है, ए इवेंट आपका क्या है कि फर्स्ट रन से एक बॉल ड्रॉ करो और सेकंड रन में पुट करो, बट वो बॉल क्या आपको, वो बॉल आपको क्या लेना है, व्हाइट बॉल लेना है। सी इवेंट क्या है कि उसके बाद जो सेकंड रन है, जो आपकी सेकंड रन है, वहां से आपको एक और बॉल ड्रॉ करना है। तो ये दोनों इवेंट को मुझे एक ही टाइम पे परफॉर्म करना है, मतलब ए और बी, मुझे ये दोनों इवेंट चाहिए, तब जाके मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। सो इफ आई कंसिडर ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस gives you, so what is, how you read this A intersection B। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मैंने फर्स्ट रन से व्हाइट बॉल को ड्रॉ किया, सेकंड रन में पुट करने के बाद मैंने मतलब +1 करने के बाद, एंड देन फ्रॉम दिस सेकंड रन आई विल ड्रॉ दी रेड बॉल। तो दिस गिव्स यू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि दोनों चाहिए ना। अगर मैं यूनियन यूज करता हूँ जिसका मतलब क्या है कि अगर आपने A इवेंट परफॉर्म किया दैट इज ऑल्सो ओके, नो नीड टू परफॉर्म इवेंट बी, बट मुझे ए इवेंट भी परफॉर्म करना है, सी इवेंट भी परफॉर्म करना है, सो दैट आई विल गेट दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट रन से बॉल ड्रॉ करके सेकंड रन में पुट करके, उसके बाद सेकंड रन में से रेड बॉल ड्रॉ करके मतलब रेड बॉल ड्रॉ करने की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो दैट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। और आपका जो सेकंड वे होगा उसमें आप क्या करने वाले हो कि फर्स्ट रन से आप रेड बॉल लेने वाले हो, सेकंड रन में पुट करने के बाद फिर आप सेकंड रन से रेड बॉल फिर से लेने वाले हो, सो दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी बाय ए, है ना। ये तो डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन की है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी बाय बी। एंड नाउ बट आपको पता है ये दोनों अलग अलग वेज है ना। ये जो फर्स्ट वे था इसका और सेकंड जो वे आ रहा है उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। Therefore your final answer is P1 plus P2, that is 259/490. Okay, so I will check if you have any doubts on this part. Okay, is there any doubt on this part? Yeah, I will share the recording also, but is there any doubt up to this part? Is that last question is clear to everyone? Okay, is this part is clear to everyone? Intersection का meaning theoretically कैसे आ रहा? Is this part is clear to everyone? Just let me know so that I can. Okay, so I think this part is clear to everyone.